हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीपीजी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के 2015 एंड 16 में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सो लेट अस स्टार्ट। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 2x whenever x is less equal 0 and it is equal to mx if x is greater than 0, then f is differentiable at x is equal to 0 if क्या है m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 3। तो उन्होंने क्या किया है, कंडीशंस दिए m के ऊपर, किस m के लिए, मतलब फ्रॉम विच ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ m दिस f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, f डैश एट 0 एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो एग्जिस्ट मतलब क्या कि एफ डैश एट 0 हमें पता है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, दिस इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0, राइट। सो नाउ जस्ट वी हियर नोट दैट लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 दिस क्वांटिटी एग्जिस्ट है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट होता है मतलब क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए एंड राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, that is it is called right derivative, and whenever you take limit as x tends to this 0 minus, it is called left derivative. So let us find it now. Just note that this means x is less than 0 means, suppose you are here, suppose it is x and here it is 0, that means here x is less equal 0, right, because x is to the left of 0. So for example, suppose you have something here minus 2, say this is your equal to x, then x is clearly less than 0, right. So for all these values of this x, this is less equal 0. तो यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन किया है उन्होंने, sin 2x, and from here it is greater than 0, this function is defined to be mx. So if we want to calculate the right derivative, so RHL, sorry, right derivative or right limit of that, so right derivative I will call this as say RD. So this is just equal to limit as x tends to 0 plus of f of x minus f of 0 divided by x minus 0, right. So this is equal to limit as x tends to 0. अब क्या करते हैं, देखो 0 प्लस है मतलब हम कहाँ से हो रहे हैं, 0 को अप्रोच फ्रॉम द प्लस ऑफ 0, दैट मीन्स फ्रॉम हियर, ठीक है। सो पॉजिटिव साइड ऑफ 0 ये होता है एंड नेगेटिव साइड ऑफ 0 मतलब इस पार्ट का। सो फ्रॉम हियर वी हैव जस्ट सीन दैट दिस फंक्शन इज mx, राइट. So fx is equal to mx minus, now f of 0 means when x is equal to 0 what is the value of function, but when x equal to 0 it is sin 2x. So put x is equal to 0 in sin 2x, it is sin 0. So sin 0 is, we know this is 0 and divided by x, ठीक है। तो क्या होगा, ये जस्ट mx होगा एंड डिवाइडेड बाय x, तो x कैंसिल हो जाएगा बिकॉज x टेंड्स टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x 0 को टेंड हो रहा है, ठीक है, टेंड्स टू 0, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0. सो दिस वैल्यू इज जस्ट इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ m. अभी क्या, m is some constant which is independent of x, so this limit is just equal to m. that means हमें क्या मिल गया कि right derivative is equal to m. अब क्या करते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. सो लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू, अब क्या करना है, 0 माइनस, ठीक है, ऑफ f ऑफ x. अभी 0 माइनस मतलब हमारा यहाँ पे 0 था, ऑल दीज नंबर्स आर लेस देन 0 एंड ऑल दीज आर ग्रेटर देन 0. अभी लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, sin 2x. तो फंक्शन का वैल्यू लिख देते हैं sin 2x माइनस f ऑफ 0. f ऑफ 0 तो 0 था, डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ठीक है. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू sin 2x अपॉन, so limit as x tends to 0 of sin 2x divided by x.
ठीक है, तो इसका लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अभी x टेंस टू 0, साइन x when x is equal to 0, sin x is 0, this x is 0, so this is 0 upon 0 form. So by L'Hospital's rule, this is just equal to limit as x tends to 0 of, take the derivative of this numerator, so this is just equal to 2 times cos 2x, take the derivative of denominator which is derivative of x which is 1, which is equal to, now put x is equal to 0, so this is cos 0, cos 0 is 1, so it is just 2 and divided by 1. ठीक है, तो this exists and it is finite, so stop here. Now hence this LD, left hand derivative, is equal to 2 and we have calculated that this right hand derivative is equal to m. ठीक है, अब लिमिट ए एग्जिस्ट हो रहा है, दैट मीन्स वी मस्ट हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड हेंस दिस m is, so this gives us m is equal to 2. That means for this m equal to 2, this function is differentiable at x is equal to 0. So this third option is the correct option. Now let us solve the next question. If x is a real number such that this modulus of 1 minus x is equal to x minus 1, then तो x के क्या 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 वैल्यू है, x इज लेस दैन 1, x ग्रेटर दैन 1, x ग्रेटर इक्वल 1 एंड x लेस इक्वल 1, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, सो लेट अस जस्ट रिकॉल दैट इफ यू हैव एनी नंबर से a, then modulus of this a is equal to a whenever a is greater equal 0 and this is equal to minus a whenever a is less equal 0. अब देखो फंक्शन दोनों के तरह मैंने 0 लिख दिया है यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल, तो 0 दोनों तरफ इंक्लूड हो रहा है, लेकिन आप देखो 0 इज सेम एज माइनस 0 है ना, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लेस इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल 0 इंक्लूड कर दिया है. सो यूज दिस डेफिनेशन. नाउ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जो अंदर का नंबर है 1 माइनस एक्स, ऐसे ही होता है 1 माइनस एक्स whenever 1 minus x ये नंबर greater equal 0 and this is equal to minus of 1 minus x if 1 minus x is less equal 0. ठीक है, सो अभी हमें क्या पूछा है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1. अभी यहाँ पे देखो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज जस्ट सेम एज x माइनस 1, क्योंकि ये दिस इज माइनस ऑफ 1 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो दिस इज x माइनस 1. When this 1 minus x is less equal 0, that means 1 is less equal x, है ना. तो this modulus is equal to x minus 1 whenever we have 1 is less equal x. That means x is greater equal 1. So this third option is the correct option. Now let us solve the next question. Limit as n tends to infinity of 2 raised to minus 2 by n is. तो देखो अभी सिंपल है ये कि you can write this 2 raised to minus 2 by n as 1 by 2 raised to 2 by n. ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई भी नंबर है a माइनस बी, तो आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन a raised to b. ठीक है, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस बोलते हैं इसको. तो दिस यू कैन राइट एज लाइक दिस. नाउ एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो 2 बाय n टेंस टू दिस 2 बाय इन्फिनिटी एंड विच टेंस टू 0, राइट, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो लार्ज होता जा रहा है, तो आपका होल नंबर विल टेंस टू इन्फिनिटी. सो दैट मीन्स दिस 2 रेज टू 2 बाय n टेंस टू 2 रेज टू 0, है ना, क्योंकि 2 बाय n टेंस टू 0 हो रहा है, तो बस मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो दिस टेंस टू 2 रेज टू 0, बट 2 रेज टू 0 इज 1. ठीक है, कोई भी नंबर लो आप उसका a से a, देन a रेज टू 0 इज 1, हमेशा ये याद रखो. सो 2 रेज टू 0 इज 1. सो एज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस टेंस टू 1 अपॉन, अभी ये पूरी क्वांटिटी कहाँ पे 1 को कन्वर्ज हो रही है, सो दिस टेंस टू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1. So this first option is the correct option. Now let us solve the next question. If f is a map from closed interval ab to r and g is a map from closed interval ab to r be two functions such that this f dash is equal to g dash of x for all x belongs to ab, then what is the value of f minus g of x for all x belongs to ab, where this f dash g dash denote the first derivative of f and g.
सो अब देखो आपको क्या बोला है कि ऑप्शंस आर सी एक्स स्क्वायर एंड सी एक्स क्यूब वेयर दिस सी इज एनी रियल कांस्टेंट. तो जस्ट नोट दैट here this condition f dash x is equal to g dash x gives us f dash x minus g dash x is equal to 0. ठीक है. Now by the definition this is just same as f dash minus g dash of x is equal to 0. ठीक है, क्योंकि ये ऐसे डिफाइन करते हैं. देन दैट मीन्स व्हाट कि f dash माइनस g dash मतलब d बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है. ठीक है, तो मैंने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लिया. देन g बाई डी एक्स ऑफ f डैश f माइनस g ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू दिस क्वांटिटी. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0 है ना. और हमें क्या पूछा है कि f माइनस जी ऑफ x इसका वैल्यू पूछा है. सो दिस मस्ट बी अ कांस्टेंट नंबर है ना, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लिया, दैट मीन्स सपोज यू टेक 2 3 एंड सो ऑन, उसका डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज़ 0 है ना. वेयर एज अगर आपने कोई फंक्शन लिया x का तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सपोज आपने x ले लिया, उसका डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, तो आपको 0 नहीं मिलेगा. ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो अगर आपने x स्क्वायर ले लिया तो 2x मिल जाएगा, बट 2x का आपको क्या करना है, इट इज़ इक्वल टू 0. तो कब वो 0 होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए होगा, लेकिन हमें फॉर ऑल x वो 0 चाहिए. दैट मीन्स दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट. अब देखो f माइनस जी हमें पूछा है ना, तो दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट. तो यहाँ पे c है, c इज एनी रियल कांस्टेंट. सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी के ये सारे क्या कंटेन कर रहे हैं, x कर रहे हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है ना. तो इसका तो डेरिवेटिव हमें कभी 0 नहीं मिलने वाला फॉर ऑल x. ठीक है, बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी. सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन इज द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ. तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स या फिर हाइपरबोला. सो लेट अस सॉल्व दिस. नाउ फॉर you just look at this, we have this x-axis and here we have fx, the values of fx. So we call fx is equal to y whenever we want to find out the curve. ठीक है, so यहाँ पे क्या बोलते हैं आप, यहाँ पे क्या बोलो आप, y is equal to fx which is equal to 3 minus 2x minus x square. ठीक है, तो अब क्या करो, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो. लाइक माइनस एक्स स्क्वायर आप पहले लो, उसके बाद माइनस 2x एंड टेक प्लस 3. नाउ यू कैन राइट दिस एज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x देन माइनस 1 प्लस 4. ठीक है, प्लस 3 को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस 1 प्लस 4. और मैंने ये क्यों किया है आपको अभी पता चल जाएगा. तो इसको मैंने ये स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, हम सो दिस इज इक्वल टू, यू टेक माइनस कॉमन फ्रॉम ऑल दिस, सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4. ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, तो दिस इज माइनस ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, क्योंकि a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. So this we have y is equal to minus of x plus 1 the whole square plus 4. Now we have y is equal to minus of x plus 1 the whole square plus 4. ठीक है, so this is a parabola. और एक पैराबोला कैसा है देखो, whenever we have y is equal to x square, उसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे. ठीक है, तो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और अगर आपने उसको x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया तो देखो एट x इज इक्वल टू 0 दिस इज 0. और एक 0 कब होता है, माइनस 1 को 0 होता है ना, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, उसका स्क्वायर इज 0. तो ये कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे आपको वो ट्रांसलेट कर लेना है बाय माइनस 1 अलॉन्ग दिस x एक्सिस. ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे.
and just put this is our 0. So at 0 this y is equal to x plus 1 square. इसका ग्राफ कैसे दिखेगा आपको, 0 + 1 इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो 0 को 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ऐसे कुछ आएगा उसका ग्राफ. ठीक है, लेकिन स्टिल वो पैराबोला ही रहेगा. अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे माइनस. ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे हमने कर दिया. तो माइनस मतलब क्या, वो सिर्फ ऐसे उल्टा हो जाता है. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू, ये ऐसा पैराबोला आएगा. ठीक है, एंड बिकॉज -x² का ग्राफ कैसे होता है, अगर y = x² ऐसा है तो -x² ऐसा होता है. तो सिमिलरली अगर इसका आपने माइनस ले लिया तो सिर्फ इसके ऐसा उल्टा आएगा. एंड वी वांट +4, राइट. तो +4 मतलब वो y एक्सिस पे ट्रांसलेट होता है बाय 4 यूनिट्स. तो अब देखो, अगर ये मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे ऐसे ट्रांसलेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा. एंड दिस इज एट 4. ठीक है, तो दिस इज पैराबोला, राइट. उसको बस आप ट्रांसलेटेड पैराबोला बोल सकते हो. सो बट दिस इज अ पैराबोला. सो द option, first option is the correct option, that this fx represents a parabola. Thank you for watching this video. I hope you understand this. Thank you.